student? Fine, okay. I am your chemistry guru, Dr. Gunjan. Today I delivered the lecture for class 10th student and subject is chemistry. Okay. Today I delivered the lecture for class 10th student, subject is chemistry. So your first topic is chemical reactions and equation. This is my sixth video lecture and previous 5 lecture containing or I already discussed what is chemical reaction, what is the properties of chemical reaction, that is when you can say that there is a chemical reaction takes place, so that there is some criteria, some characteristics of chemical reaction. On this observation you can say that there is a chemical reaction takes place. Next, types of chemical reaction. So dear student, there are 5 important types of chemical reaction in your syllabus of class 10th. First, combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. And fifth, oxidation and reduction reaction. What do you mean by oxidation? Addition of oxygen and removal of hydrogen from the element or compound is known as oxidation. Okay? What do you mean by reduction? Addition of hydrogen and removal of oxygen from the element or compound is known as reduction. Removal of oxygen and addition of hydrogen to the compound or from the compound is known as reduction. Okay? Now one very important term, oxidizing agent and reducing agent. So what do you mean by oxidizing agent and what do you mean by reducing agent? Oxidizing agent and reducing agent is the opposite of oxidation and reduction. Means जिसका oxidation हो रहा है, the substance which undergo oxidation is known as reducing agent and the substance which undergo reduction is known as oxidizing agent. So agent is the opposite of oxidation and reduction. Okay? Now, in this lecture, we are going to start what is the effect of oxidation and reduction. Okay? There are 2 main kind of effect in everyday life of oxidation and reduction are, one is corrosion and next is rancidity. First is corrosion and next is rancidity. So what do you mean by corrosion? Corrosion means a unwanted compound is deposited on the surface of metal and that unwanted compound gradually eated the metal and metal becomes weak and damaged. Okay? तो corrosion का मेन मतलब हुआ कि किसी भी मेटल के सरफेस पे अनवांटेड सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाना, वो मेटल को धीरे धीरे खा के खत्म कर देगा। जैसे ही एक लेयर लगा, वो कुछ दिन के बाद, वेरी लॉन्ग पीरियड के बाद वो
निकल गया उस मेटल के सरफेस से। अब फिर नेक्स्ट लेयर ऑफ कोरोजन जलेगा, वह भी कुछ दिन के बाद निकल जाएगा सरफेस से। इस तरह से मेटल का सरफेस धीरे धीरे मतलब कम होते जाएगा, सरफेस चिकना होते जाएगा, सरफेस का मास घटते चले जाएगा और लास्टली सरफेस मेटल का एग्जिस्टेंस उस पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोरोजन का मतलब क्या हुआ? इट इज ए ग्रेजुअली और ग्रेजुअल स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, moisture, acids or some other chemical is known as corrosion. So in short you can say that corrosion in a metal is just like a cancer in the body. कैंसर भी धीरे धीरे सेल को मारता है, खाता है, कोरोजन भी बहुत धीरे धीरे मेटल को खा जाता है। तो कोरोजन इज जस्ट लाइक ए कैंसर in the living body. Okay, so now here we write the definition of corrosion. Corrosion means the gradual eating away of a metal, the gradual eating away of a metal by chemical reaction with its environment containing oxygen, oxygen means air, water vapor, acids and other chemicals is known as corrosion. Slow eating of metal, eating up of metal by in the presence of air, moisture, acid or some other chemical, such process is known as corrosion. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, जब आयरन में कोरोजन होगा तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलेंगे, RUSTING, रस्टिंग। In case of iron, corrosion is commonly known as rusting. Rust is a chemical substance. Rust क्या है? Chemical substance, chemical compound. आयरन का ऑक्साइड, उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट का केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग और रस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज रेडिश ब्राउन। रस्ट का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड मॉइस्ट एयर। रस्ट बनता कैसे है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन iron metal and moist air. Moist air means oxygen plus water is said to be moist air. Air में जब moisture हो, so that air is said to be moist air. Okay? तो rust बना कैसे? How rust is formed? That there is a chemical reaction takes place between the iron metal and moist air. After the chemical reaction, a reddish brown color oxide is formed on the surface of iron. Such reddish brown color oxide is known as rust. Okay? Equation 4Fe. 4Fe. Fe means iron. Plus 3O2. O2 means air. Plus XH2O, not the number of water molecule is variable, not fixed. So that number is denoted by X, XH2O. तो रिएक्शन क्या हो गया? 4Fe plus 3O2 plus XH2O gives Fe2O3 dot XH2O or Fe2O3 dot XH2O is called rust. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रस्ट, RUST। और इसका केमिकल नेम हुआ हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन रोमन लेटर में इन स्मॉल ब्रैकेट 3,
hydrated iron 3 oxide, it is also known as rust. 3, which is written in a small bracket in Roman letter, which indicate the oxidation number of iron in Fe2O3. Oxidation number of iron is 3 in Fe2O3. And what do you mean by oxidation number? That's I discuss in next video. Okay. After some time, another example of corrosion. तो जब कोरोजन आयरन में होगा तो उसी को रस्ट बोलेंगे, और किसी भी मेटल में हो गया तो उसका नाम कोरोजन ही होगा. तो सेकेंड एग्जांपल ऑफ कोरोजन, आफ्टर सम टाइम द शाइनिंग सरफेस ऑफ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का चमकता हुआ सरफेस, अल्युमिनियम मेटल बिकम्स डल एंड ग्रे. ठीक है, कुछ दिन के बाद अल्युमिनियम का जो शाइनी सरफेस है वह डल और ग्रे अपीयरेंस में आ जाता है. किस कारण से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर Al2O3 ऑन द सरफेस ऑफ अल्युमिनियम. तो अल्युमिनियम को कुछ देर तक बाहर रख देंगे तो उसका अपीयरेंस डल और ग्रे हो जाएगा. किस कारण से? वह भी कोरोड हो गया और उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर Al2O3 जम गया. सिमिलरली कॉपर वेसल और कॉपर मेटल जो भी हो, कॉपर का बना हुआ कोई बर्तन या कॉपर वेसल becomes greenish after a long period when exposed in air or moisture. Okay? तो ये ग्रीनिश कलर क्यों हो गया आयरन? ड्यू टू कोरोजन. तो ग्रीन कलर क्यों हुआ? कि कॉपर के सरफेस पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर चढ़ गया. किसका लेयर चढ़ गया? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ये पूछेगा कि आफ्टर कोरोजन कॉपर बिकम्स ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, आंसर लिखना होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तो सेकेंड लिखा हुआ है कॉपर एक्वायर ए ग्रीनिश कोटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH का होल टू डॉट CuCO3. ओके. कोरोजन इज द रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. कोरोजन जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है. एक्सट्रैक्शन मींस टू कमिंग आउट. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज वीपिंग ऑफ मेटल्स. WEEPING, वीपिंग ऑफ मेटल्स. ओके. अब कोरोजन कैसे जल्दी बढ़ेगा? तो कोरोजन के लिए भी कुछ फैक्टर है. पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा रेट ऑफ कोरोजन उसका उतना फास्ट होगा. ओके. अल्युमिनियम का कोरोजन जल्दी होगा एज कंपेयर टू आयरन. आयरन का जल्दी होगा एज कंपेयर टू सिल्वर. सिल्वर बिकम्स ब्लैक आफ्टर कोरोजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड लेयर. सल्फाइड लेयर. ओके. अब है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ कोरोजन भी बढ़ेगा. अगर मेटल में इंप्यूरिटीज है तो भी रेट ऑफ कोरोजन बढ़ेगा. इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन मेटल्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोरोजन. प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड CO2 इन एयर, अगर एयर में SO2 और CO2 गैस भी मिला हुआ है देन इन दिस केसेस रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेस. एंड लास्ट वन इज अगर मेटल का सरफेस स्मूथ होगा तो कोरोजन वेरी 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 स्लो प्रोसेस होगा. अगर मेटल का सरफेस रफ होगा तो रेट ऑफ कोरोजन बढ़ेगा. तो रफनेस ऑफ सरफेस. नाउ नेक्स्ट इज हाउ you prevented the corrosion. Okay, so now the prevention of corrosion is discussed in your third unit, metal and non-metal.
और वहां पे फिर कोरोजन आएगा मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इस टॉपिक में इफेक्ट ऑफ कोरोजन को पढ़ रहे हैं। तो इफेक्ट का पहला काम हो गया कोरोजन। कोरोजन है क्या? कोरोजन किस किस पे किस कलर का होता है, किस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण। ऑल थिंग्स क्लियर और नॉट? ओके। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एरियल, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा। कैसा फूड? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। किस तरह का फूड? फैट एंड ऑयल। उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो फूड का टेस्ट भी खराब हो जाएगा और स्मेल भी खराब हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो एक्सपॉइलेज ऑफ फूड, एक्सपॉइल होना मतलब टेस्ट बदल जाना, स्मेल खराब हो जाना। एक्सपॉइलेज ऑफ फूड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन, दैट फूड एक्सपॉइल in presence of air which containing fat and oil। फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड ही खराब होता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या हो गया? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड। तो फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड का जब एयर से ऑक्सीडेशन होगा उसके बाद जो फूड में कंडीशन अपीयर होगा, स्मेल खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो क्या हो गया? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो फूड containing fat and oils is oxidized by air and food is exploit means अनप्लीजेंट स्मेल निकलने लगेगा, टेस्ट बदल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, हाउ यू कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी? रेंसिडिटी को कैसे रोकेंगे? अच्छा, टेस्ट क्यों खराब होता है? टेस्ट खराब होने का कारण है कि फैट और ऑयल इज ए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, बट इन फूड oil and fat exist in unsaturated form. Which form? Unsaturated form, while containing double bond. When oxygen comes in contact with food, then the double bond of the fat and oil breaks and oxygen linked with the food chain very quickly and then break the chain into simpler substance, smaller substance, basically butyric acid। कौन सब्सटेंस? ब्यूटायरिक एसिड। माने फैट और ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। तो डबल बॉन्ड का रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन आया तो वो फैट का जो लॉन्ग चेन कंपाउंड है उसका डबल बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन जुट गया। जब ऑक्सीजन जुटा तब वो अपना केमिकल रिएक्शन के द्वारा लॉन्ग चेन कंपाउंड को स्मॉल सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देगा, जिसके कारण टेस्ट बदल जाता है। एंड दैट कंपाउंड इज ब्यूटायरिक एसिड। कौन एसिड? ब्यूटायरिक एसिड कॉजेज रेंसिड टेस्ट। तो रेंसिडिटी का डेफिनेशन फिर बता देते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड मार्क्ड बाय एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ब्यूटायरिक एसिड कॉजेज रेंसिड टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब इसको कैसे रोकेंगे?
तो बाय पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को एयर से बचने वाला, लाइट से बचने वाला कंटेनर में पैक कर देंगे। एयर का कांटेक्ट ही नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा। सेकेंड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर द substances which work opposite of oxidation, which works opposite of oxidation, means antioxidant prevent oxidation of food। तो एंटीऑक्सीडेंट में BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA का फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT butylated hydroxy toluene, next is vitamin E and next is vitamin C, all these are antioxidant। ठीक है। use of spices also reduces the rate of oxidation। okay, तो next है by the use of spices, by flushing nitrogen gas in the containers of chips। जिस पैकेट में चिप्स देते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आने से रोकता है और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करता है। इसका एग्जांपल है, आप चिप्स का पैकेट मार्केट से खरीद लीजिए, उसको फाड़ के चिप्स को टेस्ट कीजिए और सारा चिप्स को खोल के कोई डिब्बा में रख दीजिए एयर के कांटेक्ट में। आफ्टर 2 days द टेस्ट ऑफ चिप्स इज चेंज एंड बैड स्मेल भी खराब करेगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन का जब कांटेक्ट टूट गया तो उस पोटैटो चिप्स में ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन होने से उसमें रेंसिक आ गया। ओके, तो ये हो गया बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस इन द कंटेनर्स ऑफ चिप्स। नेक्स्ट, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर पे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन घट जाता है, स्लो हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम है तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा और फूड एक्सपॉइल होने से, एक्सपॉइलेज से थोड़ा बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से बचा के भी रखेंगे, सनलाइट ऑक्सीडेशन के रेट को बढ़ा देता है तो उससे भी बचेगा मेरा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? बाय पैकेजिंग इन एयर टाइट कंटेनर, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHA, BHT, विटामिन E, विटामिन C, by the use of spices, by flushing nitrogen gas in the containers of chips, by keeping food in the refrigerator, storing food away from sunlight। और रेंसिडिटी का मतलब हो गया एक्सपॉइलेज ऑफ फूड containing fat and oils by the aerial oxidation is known as rancidity। This is the effect of oxidation and reduction। This is the effect of oxidation and reduction। Now, in next video, we start chemical reaction and equation। But before starting the chemical reaction and equation, we discussed about some more definition of oxidation and reduction, which is not very useful for you, but this is very important for you for next or higher classes। Okay, bye, take care।